Okay, so I just wanted to revise one more definition that was about nutrition, which I guess taught in the very first class. Okay, I said nutrition refers to the mode through which an organism gets or takes its food, right? There is an addition to this. When we write the definition, we can write that, like your textbook mentions, that nutrition refers to not just the mode by which the organism takes food, but also the way it utilizes it. It utilizes the food or the nutrition, the nutrients, or rather the source of nutrients. For example, I gave you the example of apple. Okay, so an organism eating its apple, and how is the apple getting broken down inside the organism in order for the nutrients to get released, or to released into the body of the organism, get digested and get absorbed into the cells of the organism to provide energy. जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जब तक हमारे वो सेल्स में अंदर जाके हज़म नहीं होगी, हज़म होने के बाद जो दूसरे सेल्स हैं हमारे, उन तक नहीं पहुंचेगी, तो हमें कहाँ से एनर्जी मिलेगी, है ना? तो न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ कहाँ से खाना लिया जाता है, प्लांट से लिया जाता है, दूसरे एनिमल से लिया जाता है, सिर्फ यही नहीं होता है न्यूट्रिशन का मतलब, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स हाउ डज द ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज दैट न्यूट्रिशन, यानी उसको किस तरीके से वो यूज़ करता है, किस तरीके से कोई चीज़ वो खाता है तो उसके अंदर वो कैसे जाके उसको कैसे हज़म होता है, कैसे हज़म होती है, और फिर कैसे जाके वो बॉडी में लगती है. कहते हैं ना, खाना तो मैं लगे, कुछ खाओगे तो लगेगा नहीं, है ना? लगने का मतलब होता है अंदर जाके एब्जॉर्ब होना, फिर एब्जॉर्ब होकर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपना फंक्शन निभाएंगे, अपना रोल निभाएंगे, यानी आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और आपके और जो बॉडी फंक्शंस हैं उसको रन करने में हेल्प करेंगे. ओके, so it was just a recap of this definition, modification to it. Alright, okay, so now getting back to where we left, we had just finished with insectivorous plants, and I told you why some plants which have though they are like they're not green in color, they do have chlorophyll, and it's due to the other pigments present in chromoplasts, okay, which mask or which hide the chlorophyll beneath their color. Its color is so intense, so dark, so strong intensity that it hides, छुपा देते हैं chlorophyll के green color को. Okay. Alright, now we're going to start with a new topic that is also a new type of nutrition that we're going to discuss about, what we call as parasitic mode of nutrition. So nutrition is not just heterotrophic and autotrophic. Of course, we can say this is a type of heterotrophic nutrition only, okay, but like I don't think you'll be asked this anywhere, but you should know this. You might be asked in your exam, but I'm not guaranteeing that fact whether it will be asked or not, but this is just for your information that it is a type of heterotrophic, means heterotrophic nutrition only. Okay, heterotrophic एक कैटेगरी है बेसिकली. ओके, इट्स अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो पैरासिटिक का मतलब होता क्या है? आपने जैसे देखा होगा कि जो मच्छर होते हैं, ठीक है, या कीड़े मकोड़े होते हैं, बेसिकली वो मच्छर या वो चीज़ें, वो बैक्टीरिया समझ लो, कुछ ऐसा गंदा बैक्टीरिया, फंगस, कहते हैं ना कि मच्छर काट लिया तो हमें खुजली होने लगती है, राइट? सो व्हाट, मच्छर काटता क्यों है? दिस इज़ द क्वेश्चन, okay, that we need to think, or we need to ponder on basically. Okay, so why does a mosquito bite at all? ठीक है, मस्किटो क्यों काटता है? उसका रीज़न ये है, पहली बात तो हमारा खून जो है ना, इट सक्स आवर ब्लड, वो हमारा खून चूसता है. उसका एक स्टिंग होता है बेसिकली, ये इसका फेस और इसका स्टिंग है, ये हमारी स्किन की लेयर है, ठीक है, आपकी स्किन की ये लेयर है, ये पूरी आपकी स्किन की लेयर है, ठीक है. ये जो इसने स्टिंग अंदर डाला है, अंदर से ये एक स्ट्रॉ की तरह काम करता है,
ठीक है। आप में सब स्ट्रॉ देखे होंगे, आप उसे सक करते हो, पानी पीते हो या कोई भी जूस पीते हो, कुछ भी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो आप उससे हवा से आप उसे सक करते हो, जिससे कि जो लिक्विड है वो अंदर जाता है, स्ट्रॉ के थ्रू आपके माउथ के अंदर जाता है, राइट। उसी तरह जो एक स्टिंग होता है, STING, स्टिंग मीन्स स्ट्रॉ, ठीक है, वो मस्किटो का स्ट्रॉ है, ठीक है। जब मस्किटो अपना स्ट्रॉ यानी स्ट्रिंग को अंदर डालता है, ये हमारे बेसिकली छेद कर देता है हमारी जो ये लेयर होती है, ठीक है, जो स्किन की लेयर होती है, स्किन की लेयर है ये, ठीक है। तो ये मस्किटो ने ऐसे एक स्टिंग ऐसे डाला है इसके अंदर, ठीक है, इसका हेड है, मस्किटो का हेड है, इसके अंदर डाला, इसके अंदर छेद करके फिर वो अंदर घुसेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही है कि हर जगह ब्लैक, आपको अगर चोट लगती है, छेद होता है, मतलब बेसिकली कोई भी इंजरी होती है, ठीक है, तो एकदम से खून निकलना शुरू हो जाता है, राइट। क्यों निकलता है खून? क्योंकि जो आपके यहाँ पे सेल्स होते हैं, खून तो हर जगह है, राइट, खून इज़ एवरीवेयर, हमारे बॉडी में हर एक सेल में खून जाता है, हर एक सेल में, ओके। आपको जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था एपिडर्मिस के बारे में, तो ये अपर मोस्ट लेयर जो होती है, एपी मतलब अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन जो होती है, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे, यहाँ पे बाल होते हैं जिनको हम लोग बेसिकली, आप बाल समझ लो, हेयर होते हैं, यहाँ पे सिलिया बोलते हैं उनको। एनीवे, हम अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी स्किन है, ठीक है, पहाड़ जैसा दिख रहा है जो स्किन है, अपर आउटर मोस्ट स्किन है, इट्स मेक अ मोर क्लियर डायग्राम, ओके। ये आपकी स्किन है, ये मैं यहाँ पे पतले पतले से ऐसे बाल बना देती हूँ, बहुत ही पतले पतले से ऐसे बाल हैं, ठीक है, हर जगह बाल है ये, ओके। अब क्या है, मस्किटो आया, उसने अपना स्ट्रॉ यहाँ डाला अंदर, मैं इसको थोड़ा सा, वैसे होता है बहुत पतला है, बट आपको मैं दिखाने के थोड़ा सा इसको मोटा बना रही हूँ, ठीक है। समझ लो ये आप इसको जूम करके देख रहे हो, जूम करने से क्या होता है, कोई चीज़ को आप जूम करते हो तो वो बड़ी दिखने लगती है, राइट, ओके। तो ये मान लो मस्किटो का स्ट्रॉ है, स्टिंग है, उसने इसको अंदर डाला, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सेल्स हैं, राइट, या अंदर सारे सेल्स बने हुए हैं, लेयर्स बनी हुई हैं सेल्स की, हर एक सेल में ब्लड सप्लाई होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी वेसल्स हैं, कैपिलरीज, मतलब बेसिकली बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं, हर जगह हमारे बॉडी में हर एक सेल में ब्लड होता है। तो जब स्ट्रॉ अंदर घुसता है, तो यहाँ पे जो जितना भी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, सपोज ये पूरे यहाँ पे ऐसे ब्लड है, ठीक है, पूरे यहाँ पे पूरा ब्लड है अंदर, ठीक है, हर एक सेल में ब्लड है, ओके। तो अब क्या होगा कि मस्किटो का जो स्टिंग है, जब वो अंदर जाता है तो ये ब्लड इसमें से ऊपर आएगा, वो उसको सक करेगा, बेसिकली जब आप स्ट्रॉ में से सक करते हो, तो ये ब्लड जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ब्लड अंदर चला जाएगा, ये मस्किटो का हेड है, ये इसको चूस लेगा बेसिकली, राइट, ओके। सो इसको बोलते हैं, ये मतलब क्या कर रहा है, आपके ब्लड को बेसिकली चूस रहा है, इसका जो आपका ब्लड है वो इसके लिए एक तरह से खाना है, ठीक है, इट फीड्स ऑन योर ब्लड टू सर्वाइव। और ये मोस्टली फीमेल मस्किटो होता है, फीमेल, ठीक है, मेल नहीं होता है, क्योंकि फीमेल एक बच्चे को जन्म देती है, मेल नहीं देता, राइट। फीमेल ब्लड पे तब फीड करती है जब उसको एक बच्चे को जन्म देना होता है। अभी के लिए आप इतना ही समझ जाओ। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया बेसिकली, ठीक है, कि मस्किटो इज़ अ पैरासाइट, बेसिकली मस्किटो इज़ अ पैरासाइट एक ऐसी चीज़ होती है, बेसिकली वो, अब ऐसा है कि जैसे हम लोग प्लांट का फल तोड़ के खा रहे हैं, ठीक है, तो इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, प्लांट का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, प्लांट अपना ग्रो कर रहा है, वैसे ही वो अपना फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, न्यूट्रिशन से मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो सॉइल से न्यूट्रिशन ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, ठीक है, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो अपना ग्रो कर जा रहा है, सालों साल ग्रो करता रहता है,
और बड़ा होता है और फ्रूट्स आते हैं, आप प्लक करोगे, फिर उसके बाद सीज़न दूसरा आएगा सीज़न, फिर दोबारा फ्रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके फ्रूट्स आते रहते हैं, वो ग्रो करता रहता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अब क्या है कि आपने सुना होगा कि मस्किटो से कुछ हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मलेरिया। आपने मलेरिया सुना होगा, एम आई राइट? मलेरिया एक तरह की बीमारी होती है जो कि मस्किटो ही कॉज करते हैं। कि आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ। पैरासाइट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके साथ वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर किसी आपके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर इट्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपका ब्लड उसके लिए खाना है, ओके। तो आपके ब्लड को वो सक करेगा, जैसे कि मस्किटो है, ठीक है। सक करने के साथ साथ अब मस्किटो में कई सारे जर्म्स होंगे और, ठीक है, उसमें से एक जर्म होता है मलेरिया कॉज करने वाला जर्म, ठीक है। तो जब वो सक कर रहा होता है आपका ब्लड, उसी दौरान जो जर्म उसके मुंह पर लगे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मान लो जर्म्स हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे डिपिक्ट कर दूँ, सपोज मैं ये कलर से डिपिक्ट कर रही हूँ, बहुत सारे जर्म्स हैं, ठीक है। जब वो ब्लड अंदर जा रहा है, ब्लड इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, तो वहीं जो जर्म्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। कैन यू सी दीज ऑरेंज डॉट्स? तो ये आपकी जो स्किन के अंदर जर्म्स एंटर हो गए हैं, ठीक है। वाइल इट वॉज सकिंग द ब्लड फ्रॉम योर स्किन, दीज जर्म्स ऑल्सो गॉट ट्रांसफर्ड, और बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टिंग इनटू योर स्किन। तो आपकी स्किन में मलेरिया के जो जर्म्स हैं वो घुस गए, ठीक है, जिससे कि आपको मलेरिया हो गया। अब वो अंदर जर्म्स जाके अपने आप को बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो कर करके वो बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, बंदे को मलेरिया हो जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है, फीवर होता है वगैरह वगैरह जो भी है। तो क्या है कि बंदे को नुकसान होता है, राइट। उसको कोई तरह का बेनिफिट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उसको कोई इफेक्ट भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि इसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, जैसे प्लांट्स को कोई इफेक्ट नहीं होता। हम लोग प्लांट्स का एक फल तोड़ के खाते हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ही उनको उसका कोई बेनिफिट होता है, ना ही कोई नुकसान होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि प्लांट इज सिंपली नॉट अफेक्टेड, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर इस केस में क्या है कि जब मच्छर हमें काट रहा है, अगर उसमें ऐसे जर्म्स होंगे तो वो हमारे अंदर चले जाएंगे और हमें बीमारी हो सकती है। अब बीमारी होगी तो उसमें हमारा नुकसान है। यानी पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अगर अपने होस्ट क्या होता है, पहली बात, होस्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर वो फीड करता है। इस केस में ये, और हम लोग उसके होस्ट हैं, हम लोग मस्किटो के होस्ट हैं। सो वी कैन से दैट ह्यूमंस आर द hosts of the mosquito, or the mosquito depends on the blood, humans blood basically, to be specific, human blood, ठीक है, ह्यूमन ब्लड। तो इस केस में जो ह्यूमन ब्लड है, ठीक है, इट एक्ट्स द होस्ट, बेसिकली ह्यूमन एक्ट्स द होस्ट, नॉट द ब्लड। ब्लड तो ह्यूमन से मिल रहा है उसको, ठीक है। जैसे प्लांट से फ्रूट मिल रहा है आपको, तो प्लांट होस्ट है, ना कि फ्रूट, ठीक है। उसी तरह जो मस्किटो है, होस्ट के स्पेलिंग HOST, होस्ट, ठीक है, जिस पे कोई चीज़ फीड कर रही है, ठीक है। अब मच्छर आप पर फीड कर रहा है, वो आप उसको ब्लड दे रहे हो। जिस तरह प्लांट फल देता है आपको, फ्रूट देता है, तो इस केस में प्लांट होस्ट है, ना कि फ्रूट। उसी तरह इस केस में ह्यूमन होस्ट है, यानी हम होस्ट है, ना कि ब्लड। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो क्या है, हम पैरासाइट की बात करते हैं। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है which causes or which basically destroys in a certain way, ठीक है। वो कोई भी तरह का बेनिफिट, वो नुकसान पहुंचाता है, एक तरह से होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट, हम अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन पैरासिटिक, SITIC, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अब आप सोचो ज़रा इसका क्या आंसर होना चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब होता है लेना और यूटिलाइज करना, राइट।
ओके, न्यूट्रिएंट्स लेना, उनको यूटिलाइज करना। पैरासिटिक का मतलब होता है ऐसे होस्ट पे फीड करना जिसको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली इसका मतलब ये है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इट मीन्स कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन इट्स होस्ट, ठीक है, टू गेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, ठीक है, और टू गेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, ओके, कॉसिंग हार्म, HARM, हार्म यानी नुकसान, नुकसान टू द होस्ट, ठीक है, ओके, देन इट्स कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो बेसिकली व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द होस्ट, ठीक है, टू गेन इट्स न्यूट्रिएंट्स, बट इन टर्न यानी उसके बदले में, इन टर्न, ठीक है, द पैरासाइट इज हार्मिंग और हार्मिंग द होस्ट, ठीक है, यानी नुकसान पहुंचा रहा है होस्ट को। उसको तो अपना न्यूट्रिएंट मिल रहा है, उसको अपना न्यूट्रिशन मिल रहा है ब्लड से या जिससे भी, फ्रूट से, मतलब फ्रूट तो नहीं, ब्लड से इस केस में, ठीक है। बट इन टर्न यानी बदले में होस्ट को या फिर हमें क्या मिल रहा है, हमें तो बीमारी मिल रही है इससे, राइट, हमें तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो इस केस में हमारा नुकसान है। तो वी से दैट द पैरासाइट इज हार्मिंग अस इन ऑर्डर टू गेन न्यूट्रिशन फॉर इटसेल्फ, ओके। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रेफर्स टू द मोड इन विच द ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू फुलफिल यानी पूरा करना, कोई चीज़ को पूरा करना, फुलफिल, ओके, फुलफिल इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। स्पेलिंग देखो, न्यूट्रिशनल, NUTRI, न्यूट्रिशन, शन है शन, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ओके, nutritional requirements, but in turn it harms the host. harms को आपने underline कर लो या highlight कर लो किसी तरह, but in turn it harms the host, okay, then it's called parasitic mode of nutrition, okay. अब इसके एग्जाम्पल में एनिमल्स, अब आपको इस केस में आपको एग्जाम्पल देने होंगे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिफाइन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद एग्जाम्पल, ओके। सो एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको ये बता दिया कि जिस केस में मस्कीटो इज द पैरासाइट, QUITO आता है, ओके, मस्कीटो इज द पैरासाइट एंड ह्यूमन इज द होस्ट, ये है पैरासाइट, ओके, और ये ह्यूमन जो है दैट्स द होस्ट। एक ये रिलेशनशिप हो गई, रिलेशनशिप है मतलब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्ट मतलब आपस में अदला बदली कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं और दे रहे हैं। अब उस केस में पता है एक तरह से हम कह सकते हैं एक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। रिलेशनशिप क्या होती है, जैसे मैं बोलती हूँ आपके मदर फादर के साथ रिलेशनशिप है, रिश्ता बेसिकली, ठीक है, रिलेशनशिप इज कॉल्ड रिश्ता, आई होप इट्स क्लियर व्हाट आई मीन, ऑलराइट। सो रिश्ता बेसिकली दो ऑर्गेनिजम्स के बीच कैसा रिश्ता है, वो आपस में किस तरह से इंटर मतलब आपस में एक्ट मतलब किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपस में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेक्ट, इट्स वन वर्ड, इंटरेक्ट, ठीक है, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको रिलेशनशिप बोलते हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो जब भी आपको मैंने जितने भी एग्जांपल्स अभी तक बताए, जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, इन सब केसेस में हम कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे प्लांट्स और हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यानी कंप्लीट करने के लिए। बिना प्लांट्स के वी कैन नॉट सर्वाइव और वी कैन नॉट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, ओके। तो हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारा,
प्लांट्स का है ऑटोट्रॉफिक, यानी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उस केस में ऑटोट्रॉफिक में कोई दो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद से बना रहा है। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या फिर एक सोर्स होता है, एक होता है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं होस्ट, जो न्यूट्रिशन दे रहा है बेसिकली। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट्स द होस्ट। हम लोग होस्ट हैं, हमारा ब्लड है सोर्स, ठीक है। वी आर ऑफरिंग, द होस्ट इज ऑफरिंग द सोर्स, यानी कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, कहाँ से मिल रहा है, सोर्स क्या है उसका। होस्ट इज ऑफरिंग द सोर्स फॉर द हेटेरोट्रॉफ टू गेन द न्यूट्रिशन, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये बताया था जो पैरासिटिक मोड है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड इज ऑल्सो टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या है कि मस्किटो अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो हम पे डिपेंड कर रहा है, हमारे ब्लड पे डिपेंड कर रहा है। वो खुद से अपना ना ही वो फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, ना ही वो कुछ कर सकता है, तो वो अपने आप से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकता अपनी, इसलिए उसको दूसरे होस्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है टू फुलफिल इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो इन दोनों केसेस में दो चीज़ों की आपस में इंट्रैक्शन हो रही है, दो ऑर्गेनिजम्स की। ये मैंने बताया था। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये आपको मैंने अभी मस्किटो और ह्यूमंस का एग्जांपल बताया। प्लांट्स के केस में आपको ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि प्लांट्स के केस में भी एक ऐसा प्लांट है जिसको बोलते हैं कस्क्यूटा, CUSCUTA, क्यूटा, ठीक है, कस्क्यूटा। हम बोलते हैं बहुत क्यूट है कोई चीज़, क्यूट, क्यूट का क्यूट, कट क्यूट वर्ड आ गया, ई की जगह ए लग गया, ठीक है। कस्क्यूटा, CUSCUTA, कस्क्यूटा, ठीक है। इसको हम लोग डोडर भी बोलते हैं, ठीक है। आपको बताया था पिछले वीडियो में, मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोगों को समझ नहीं आया, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम बताया था। ओके, तो उसके हिसाब से जो मैंने रूल्स बताए थे आपको दो, कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। पहला ये होता है कि उसका जो वेरी फर्स्ट लेटर है, भले ही वो किसी भी सेंटेंस के अंदर आ रहा है या फिर फुल स्टॉप के बाद शुरू हो रहा है, तो उसमें वो कहीं भी आ रहा है, पूरे सेंटेंस में बीच में आ रहा है, एंड में कहीं पर भी आ रहा है वर्ड, उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और दूसरा चीज़ बताई थी, इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको मैंने बताया था एक अलग फॉन्ट स्टाइल यानी स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिटन, जो भी हमने लिखा उससे थोड़ा सा उसको डिस्टिंग्विश करने के, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए उसको हम डिफरेंट वे में लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो कस्क्यूटा है, CUSCUTA, कस्क्यूटा भी एक साइंटिफिक नेम है, डोडर का साइंटिफिक नेम, डोडर एक प्लांट का नाम है, ठीक है। कस्क्यूटा उसी का साइंटिफिक नेम है। ओके, हर एक चीज़ का एक कॉमन नेम और एक साइंटिफिक नेम होता है। तो उसी तरह डोडर एक कॉमन नेम है एक प्लांट का, और उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है कस्क्यूटा। ऑलराइट, ओके। सो हम लोग इससे क्या करेंगे, सी का जो उसका कैपिटल लेटर है, इसको हम जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में लिखेंगे और इसको हम अंडरलाइन करेंगे। एक सिंगल अंडरलाइन करनी है, मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ, एक सिंगल अंडरलाइन बहुत है। ओके ओके, सो कस्क्यूटा एक तरह का प्लांट पैरासाइट है। इट्स अ काइंड ऑफ प्लांट पैरासाइट। इसका मतलब ये है कि इट इटसेल्फ ऑल्सो इज़ अ प्लांट। कस्क्यूटा अपने आप में भी एक प्लांट है, ठीक है, लेकिन इट ऑल्सो फीड्स ऑन अदर प्लांट्स टू गेन इट्स न्यूट्रिशन। वो एक ऐसा प्लांट है जो कि अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स खुद फुलफ़िल नहीं कर पाता। वो अपने आप से बेसिकली आप ये समझ लो, वो अपना जो भी इसको ग्रो करने के लिए उसको चाहिए, जो भी चाहिए वैसे ना, ऐसे जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये सपोज एक हेल्दी प्लांट है, ठीक है, एक हेल्दी प्लांट है ये, ठीक है, एक प्लांट है।
तो और इसकी ऐसे ना ऐसे ब्रांचेस ऐसी बहुत सारी निकली हुई हैं, ठीक है। और ये इसकी हैं रूट्स, ठीक है। इसकी रूट्स हैं। जो कस्क्यूटा होता है आपका, ठीक है, जो कस्क्यूटा होता है वो पैरासाइट है, इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करूँगी। वो क्या होता है, सपोज यहाँ पे आपका कस्क्यूटा बॉर्न हुआ है, ठीक है, वो ऐसा रेंगता 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 ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक, ठीक है, बहुत ही पतला सा ऐसा थ्रेड लाइक होता है। ये पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर ऐसे 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 करता करता पूरा ग्रो कर जाएगा ऐसे थ्रेड लाइक, ठीक है, पूरा चिपक जाएगा उसके साथ जाके, ठीक है। तो ये कस्क्यूटा है, बिल्कुल ऐसे थ्रेड लाइक, इसका आकार बिल्कुल ऐसे थ्रेड लाइक रिबन लाइक होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, या रूट से चढ़ता चढ़ता पूरे प्लांट्स पे ऑक्यूपाई कर देता है ये, ठीक है। ये प्लांट के हर एक जो स्टेम है, सपोज प्लांट की जो स्टेम है, ठीक है, उसमें भी अलग अलग सेल्स होते हैं, राइट, ऐसे सेल्स दिखाए हुए हैं मैंने। तो जो कस्क्यूटा होता है वो क्या करता है, ये जाके ना बेसिकली समझ लो ये कस्क्यूटा है, ठीक है, ये आया इसके साथ, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर इसका दिखा रही हूँ मैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे फिर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो है, जो ये हर एक पार्ट है इसका, वो जो स्टेम है, ये सपोज स्टेम है, ठीक है, स्टेम ऑफ अ हेल्दी प्लांट, ओके। अब क्या है, जो कस्क्यूटा इसके साथ ना कनेक्शन जोड़ लेगा अपने, समझ लो एक तरह से इसके ना सेलुलर कनेक्शन जुड़ जाएंगे। जो कस्क्यूटा भी एक मतलब वो है, प्लांट है, तो इसके अंदर भी सेल्स होंगे, इसके सेल्स और जो हेल्दी प्लांट के सेल्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी एक पक्का कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। वो पक्का कनेक्शन क्यों बन जाएगा, ताकि जो भी ये प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, नॉट न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इसमें आ जाएं, ठीक है, इस कस्क्यूटा के जो सेल्स हैं उनके अंदर आ जाएं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था मस्किटो अपना जो स्टिंग है, वो मस्किटो जो अपना स्टिंग है, ये सपोज स्किन की लेयर है, वो अपना स्टिंग अंदर डालता है, जब तक वो अंदर नहीं डालेगा तो वो ब्लड कहाँ से लेगा, एम आई राइट। तो एक क्लोज कनेक्शन, एक कनेक्शन है उसका, ठीक है, उसको अंदर डाल रहा है, स्ट्रॉ को या स्टिंग को अंदर डाल रहा है, जिससे कि एक क्लोज कनेक्शन आ रहा है, तो ब्लड डायरेक्टली उसके अंदर जाएगा, राइट। उसी तरह अब इसके अंदर तो कोई स्टिंग है नहीं, कस्क्यूटा के अंदर तो कोई स्टिंग है नहीं, इसके अंदर नॉर्मल सेल्स हैं, तो एक तरह का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करने के लिए जो कस्क्यूटा है वो इतना उसको स्ट्रॉन्गली पकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है प्लांट के स्टेम को, ब्रांचेस को, रूट्स को, हर जगह, ठीक है। इवन मतलब हर एक प्लांट का जो हर एक पार्ट है, ठीक है, उस पर वो बिल्कुल अपने आप को एक तरह से पकड़ लेता है, बहुत स्ट्रॉन्गली पकड़ के इंटर यानी सेलुलर्स के आपस में विद इन सेल्स, बेसिकली सॉरी नॉट विद इन सेल्स, दो सेल्स के बीच में इंटर होता है, ठीक है। आपको इंट्रैक्शन में बताया था, आपस मतलब, ठीक है, दो सेल्स अगर आपस में जुड़ जाएं, मान लो कि ये एक प्लांट का सेल मैंने बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट का सेल है और ये एक उसकी सेल वॉल है बीच में, ठीक है, और जो कस्क्यूटा है उसका सेल ये है, ठीक है, ग्रीन कलर का। तो ये बीच में प्लांट की सेल वॉल है, मोटी वाली। अब जब तक वो उसके साथ नहीं चिपकेगा सेल वॉल के साथ, तो आपस में जो न्यूट्रिशन का आना जाना कैसे होगा, आ तो कुछ रहा नहीं है प्लांट के अंदर, जा ही रहा है बेसिकली, ठीक है, जा ही रहा है, आ कुछ नहीं रहा है, ओके। तो सिर्फ आएगा, कस्क्यूटा के अंदर आएगा और प्लांट से निकल के कस्क्यूटा के अंदर तभी जाएगा वो। आई होप आपको समझ आ रहा है। ये प्लांट का सेल है, ठीक है, और ये कस्क्यूटा का सेल है, ठीक है, और बीच में जो है वो ऐसे वॉल है, प्लांट की वॉल है। अब हमें चाहिए, जो कस्क्यूटा का चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट आने हैं इसमें, कस्क्यूटा के अंदर आने हैं, ठीक है। तो ये कस्क्यूटा अपने आप को इतना ज़्यादा उससे लिपट जाएगा बेसिकली,
ठीक है, लपेट जाएगा इतना ज़्यादा, मतलब जब तक वो इतना स्ट्रॉन्गली नहीं लिपटेगा तब तक वो कहाँ से उसके अंदर न्यूट्रिशन आएगा, मतलब कहाँ से जो सेल्स हैं जब तक वो चिपकेंगे नहीं आपस में तो कैसे आना जाना होगा, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कैसे होगा, न्यूट्रिएंट्स कैसे अंदर आएंगे, सेल टू सेल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बोल सेल टू सेल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रॉ होता है, स्टिंग होता है उसका मस्कीटो का, तो उसमें जो स्टिंग कम्स इन कांटेक्ट विद आवर ब्लड इन ऑर्डर टू टेक इट अप। ठीक है, उसी तरह जो इस केस में इसका कोई स्टिंग नहीं है कस्क्यूटा का, तो क्या है कि इसका जो सेल होता है इट कम्स इन क्लोज कांटेक्ट विद द सेल ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट सेल है, ये है कस्क्यूटा का सेल। अब इससे न्यूट्रिएंट आने के लिए स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट होना ज़रूरी है। ओके, तो इसीलिए जो एक स्टेम होती है प्लांट की, ठीक है, अब इसके अंदर हर एक मैं आपको सेल बना के दिखा रही हूँ, सपोज ये सेल्स हैं इसके। ठीक है, तो जो कस्क्यूटा है वो कुछ ऐसे आया इसके साथ, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से आया। कस्क्यूटा के जो सेल्स हैं आपस में, ये देखो मैं इसके साथ बना रही हूँ बिल्कुल ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 करके। तो आप देखोगे जो ये जगहें हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पूरा इसके जो साथ ये सेल्स हैं इसके, ये जो सारे सेल्स हैं, ठीक है, कस्क्यूटा के सेल्स दिखा रही हूँ मैं आपको, ये सारे कम इन कांटेक्ट विद द सेल्स ऑफ द स्टेम, क्लोज कांटेक्ट। ठीक है, जिससे कि सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं जितने भी, वो प्लांट से कस्क्यूटा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब इस केस में क्या हो रहा है कि कस्क्यूटा इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट टू गेन द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो लेकिन प्लांट को क्या है, इस केस में प्लांट को नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्वेश्चन ये है। अब आप सोचोगे कि हम लोग जो आपने बोला था कि अगर हम एक फ्रूट निकाल के अगर हम खाते हैं प्लांट का तो उसको तो कोई नुकसान होता नहीं, वो तो ग्रो करता रहता है। लेकिन इस केस में क्या है कि आपको मैंने बताया था कि जो एक ट्री होता है, हेल्दी ट्री बोल रही हूँ, अभी मैं हेल्दी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, हेल्दी, इट्स अ हेल्दी ट्री। ठीक है, अभी इट्स अ हेल्दी ट्री, वंस कस्क्यूटा स्टार्ट्स टू ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द ट्री लाइक दिस, आपको मैंने बताया था वो पूरे के पूरे प्लांट को कवर कर लेता है ऐसे, ऊपर से लेकर नीचे तक, राइट फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट, दैट्स द कैनोपी, या फिर ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, रूट से लेकर लीव्स तक, फ्रूट्स तक, हर एक चीज़ को वो कवर कर लेता है, एक नेटवर्क, एक वेब टाइप बना लेता है। आपने स्पाइडर का वेब देखा होगा, ऐसा वेब होता है, राइट, ऐसा ऐसा वेब होता है, पूरा एक स्पाइडर का वेब होता है, WEB वेब, यानी नेटवर्क, एक तरह से नेट। आपने नेट देखी है ना, चाय पत्ती होती है उसकी छन्नी बेसिकली, चाय पत्ती कैसे नेट होती है, चक 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 ऐसे बना होता है, उसमें होल्स होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क, NETWORK, नेटवर्क, यानी नेटवर्क को ही हम वेब भी बोलते हैं, वेब। ठीक है, तो जो कस्क्यूटा होता है वो पूरे जो प्लांट होता है उसको पूरा एक तरह से उसको कवर कर लेता है, उस पर वो पूरा वेब बना लेता है। ठीक है, तो ये सपोज ये मैंने कस्क्यूटा बना दिया, ये पूरा इसको कवर कर लेगा, हर जगह से कवर कर लेगा इसको। ठीक है, तो अब क्या होगा, पूरे के पूरे प्लांट को कवर करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होता है। अब प्लांट के पास कोई जगह बची ही नहीं है, खुली जगह नहीं है, वो हर जगह से ढका हुआ है। कस्क्यूटा ने उसको साइज हर तरफ से उसको ढक दिया, वो कहीं से भी उसके पास खुली जगह नहीं है। अब बताओ, तो उसके पास अगर सन होगा भी, यहाँ पे सन यहाँ पे शाइन कर रहा है, अब उसकी प्लांट्स ये ग्रीन कलर का है, सब कुछ है, मतलब जो लीव्स वगैरह सब कुछ उसकी ग्रीन कलर की थी। ठीक है, अब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो फोटोसिंथेसाइज ठीक से, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं कर पाएगा, बट वो उतना नहीं कर पाएगा जितना उसको करने की ज़रूरत है।
ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट मतलब जितना उसको करना चाहिए उससे नहीं, उतना नहीं कर पाएगा, उससे कम करेगा। ठीक है। तो जितना उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए वो उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको किसी चीज़ ने ढक लिया। ठीक है, कवर कर दिया, बेसिकली पूरी तरह से वेब बना लिया, नेटवर्क बना लिया, कवर कर लिया। उसके पास कोई खुली जगह है ही नहीं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये, हमें ये भी पता है कस्क्यूटस का जो बचा हुआ न्यूट्रिशन है, जो प्लांट का ऑलरेडी जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म में है, जैसे फ्रूट्स के फॉर्म में है, जितना भी जो फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, इन सब में शुगर जाके, सब हम बोलते हैं ना फ्रूट्स में शुगर होती है, शुगर जाके स्टोर हो जाती है। जो भी प्लांट्स शुगर बनाते हैं वो सब फ्रूट्स में जाके स्टोर हो जाती है। स्टोरेज ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के। ठीक है। जैसे कि आलू, कैरेट, जितने भी जो वेजिटेबल्स हैं विच ग्रो अंडर द सॉइल, ठीक है, ये भी एक तरह से स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, जो कि जो प्लांट है वो अपने लिए मतलब बेसिकली स्टोरेज जो एक्सेस में वो बना के रखता है, ताकि अगर उसको कभी ज़रूरत पड़े तो वो इनमें से शुगर लेकर यूज़ कर सके। ठीक है। सरप्लस बेसिकली वो एक्स्ट्रा बना के रखता है। एक्स्ट्रा समझते हो ना आप? एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रा यानी थोड़ा सा ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बना के रखता है इन स्टोरेज ऑर्गन्स में। वो आते हैं फ्रूट्स में। ठीक है। लीव्स में तो होता ही होता है, क्योंकि लीव्स तो बनाती हैं शुगर्स, और साथ में अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फ्रूट्स तो कोई नहीं होते हैं, वेजिटेबल्स ही होती है। अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स जिसके अंदर आपका पोटैटो आ गया, ठीक है, कैरेट आ गई, रेडिश आ गई, ऐसे इस तरह बीट रूट भी आ गया। ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं वो, और जो फ्रूट्स हैं, उन सब के अंदर शुगर स्टोर्ड होती है। मेरा मतलब ये है कहने का कि आपको मैं बताया था कि कस्क्यूटा जब कवर कर लेता है पूरे प्लांट को, तो उसके पास कोई खुली जगह नहीं होती है फोटोसिंथेसाइज करने के लिए। और दूसरा, जो उसका बचा हुआ स्टोर्ड न्यूट्रिशन है, जो आपको मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स जो स्टोर होते हैं इन ऑर्गन्स में, ठीक है, तो क्या होगा जब कस्क्यूटा पूरा कवर कर लेगा तो कस्क्यूटा भी तो उसमें से न्यूट्रिशन खींच रहा है। एम आई राइट? मैं आपको बताया था, जो सेल टू सेल कांटेक्ट हो जाता है, कस्क्यूटा उसके ऊपर फीड कर रहा है, यानी वो प्लांट जो है जिसके ऊपर उसने कवर कर लिया वो होस्ट है उसका, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए। तो जब वो उसके साथ सेल टू सेल कांटेक्ट बना लेता है, ठीक है, सेल टू सेल कांटेक्ट जब वो बना लेता है, सपोज ये कस्क्यूटा का है और ये प्लांट का सेल है, सेल टू सेल जब कांटेक्ट बना लेता है तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप एरो इस तरफ किया, मतलब कस्क्यूटा खींच रहा है अपनी तरफ। जो प्लांट के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कस्क्यूटा अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है। यानी जो बचा कुचा न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो प्लांट के अंदर, वो सारा कस्क्यूटा अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है। और प्लस जो प्लांट्स के पास जगह भी नहीं है फोटोसिंथेसाइज करने की, तो क्या होगा, प्लांट विल गेट डेफिशिएंट, इट विल गेट डेफिशिएंट, उसके पास कमी हो जाने लगेगी। धीरे धीरे क्या होएगा, प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की, ना ही वो बना पा रहा है, और जो उसका स्टोर्ड है वो भी कस्क्यूटा चूसे जा रहा है। ठीक है। वो खींचे जा रहा है अपने अंदर, तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं। तो क्या होगा, धीरे 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 करके प्लांट जो है वो मरने लगेगा। एम आई राइट? इट विल स्टार्ट गेटिंग डेड। होले होले आप देखोगे जो प्लांट है उसकी लीव्स झड़ने लगेंगी, ठीक है, फ्रूट्स झड़ने लगेंगे, क्योंकि उनको कहीं से कुछ न्यूट्रिशनल नहीं मिल रहा है, वो फ्रूट्स बनाने बंद कर देगा, लीव्स उसकी झड़ने लगेंगी, सब कुछ उसका डेड होने लगेगा। ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये सब ना धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। तो आप इसमें नोटिस करोगे, अब जो इस केस में जो कस्क्यूटा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट से सारा खींच रहा है, यानी इस केस में वो मस्कीटो की तरह एक्ट कर रहा है। एम आई राइट? और जो इस केस में जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो होस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में ये होस्ट और पैरासाइट की रिलेशनशिप हो गई एक तरह से। ठीक है। तो इस केस में आपको मैं कह सकती हूँ जो होस्ट है वो है प्लांट, जिसके ऊपर कस्क्यूटा है, फिर डोडर फीड कर रहा है, और जो पैरासाइट है वो है कस्क्यूटा। वाई? बिकॉज इट इज़ कॉसिंग हार्म, यानी नुकसान पहुंचा रहा है वो प्लांट को। ठीक है। इट इज़ कॉसिंग हार्म,
उसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसको तो इनफैक्ट न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, वो जाके क्लोज कांटेक्ट करके न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है। पर जो प्लांट्स हैं उनको हार्म हो रहा है, उनका सारा न्यूट्रिशन जा रहा है, वो फोटोसिंथेसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे वो मर जाते हैं, ठीक है, तो उनको हार्म हो रहा है। तो इससे क्या है कि जो पैरासाइट को इसमें बेनिफिट हो रहा है, होस्ट को हार्म हो रहा है, तो इट इज़ अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, पैरासिटिक मोड है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके।